Assalamu alaikum student. Today we'll be continuing with our chapter Alchemy of Nature. As I explained you, alchemy means mystery, mysteries of nature. Nature, everything that are present around us naturally by the God, that things are we called part of a nature. For example, trees, mountains, rivers, rocks, all these things are part of our nature. Flower, fruits, everything that are presented naturally are called as a part of our nature. All these things that are present in the nature are mysterious. Some things we see are very subtle, very soothing, but they can be dangerous, and some things that we see are very dangerous can be helpful. Things that are present around us in the nature are always useful. There is nothing in the nature that can be called as useless, that have no use. Everything that is present in the nature have some or the other use. Some are harmful for us and some are useful for us, but everything that is present in the nature have a use. As we all know, there is an ecological balance. एक जो ecological circle होता है, like for example, insects depends on grass, herbivorous animals depend on grass, carnivorous animal depends on herbivorous animals, omnivorous depends on carnivorous, and when omnivorous persons animals dies, they become the foods of decomposers. So there is a chain and cycle, that everything that is present in nature is dependent on something or the other. Everything has a purpose, and we saw many examples. We saw that flowers that only blooms for a day, then to enjoys its life to the full splendor. We saw that a rock that seems very hard, very difficult, very tough, and water is so very gentle, but the resistance, the continued pressure of a water makes the rock surrender. So this is the part and parcels of life. Now we'll continue. We saw small bits of grass peeping matlab झांकना through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. Many a times जंगलों में जाएंगे या फिर कहीं हमारे जो कंक्रीट के रास्ते होते हैं, पेवमेंट्स होते हैं, वहाँ से अचानक से कहीं से घास उगती हुई नज़र आ जाती है. अब वो देखकर ना कोई वहाँ पे पानी डालने वाला होता है, ना ही जाकर हम वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, लेकिन वो फिर भी फ्लावर्स होते हैं, घास जो होते हैं वो उग जाती है. तो उसको सोचकर हम लोग देखकर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है. एक सीमेंट के टुकड़े से वहाँ से भी झाड़ उग रहा है. तो मतलब अगर किसी इंसान को जीने की चाह हो, अगर कुछ करने का जज्बा हो, तो किसी भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है. देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग. अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए रास्ता अपने आप मौजूद होता है. We saw a tree bare of all leaves. Bare matlab khali. Bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over. But 3 months passed. Spring set in and the tree was back to its green majesty, once again full of leaves, flower, birds and life. What if we too had the conviction matlab firm belief, that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. मैनी अ टाइम्स जब अभी बरसात हो रही है तब हर जगह हरा भरा होता है, लेकिन जैसे ही बरसात चली जाती है, ठंड आती है, फिर उसके बाद गर्मी का मौसम होता है, तो वो धीरे धीरे जो हरियाली होती है वो ख़त्म होकर घास सूख जाती है, अपने आसपास सब एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाता है, बेरंग सा हो जाता है. लेकिन जैसे ही बारिश होती है वापस सब हरा भरा हो जाता है. तो उसी तरीके से अगर इंसान अपने अंदर कन्विक्शन मतलब एक यकीन रख ले कि टाइम कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वक्त गुजर जाता है. अगर इंसान ये सोच कर चले कि हाँ आज मेरा बुरा वक्त है, तो ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन चेंज ज़रूर होगा. और इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि अगर मेरा अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आ सकता है. अगर इंसान ये दोनों चीज़ें सोच कर चले कि वक्त का काम ही है कि आना और जाना, तब अगर इंसान ये सोचे तो वो अपनी लाइफ में बड़ी सी बड़ी मुश्किल आसानी से पार कर सकता है. क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ज़्यादा वक्त के लिए रहता नहीं है.
वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग. लगिंग का मतलब होता है बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को खींचना. लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times the end size. The ends organized themselves around the fly, lifted it on a frail fillers. Frail का मतलब होता है कमज़ोर. Fillers का मतलब उनके पैर. And themselves around and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance. Perseverance मतलब किसी एक चीज़ पर अपने कंसंट्रेशन रखना या फिर एक ही चीज़ पर ध्यान देना. वर इम्प्रेसिव. व्हाट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट. अभी नॉर्मली देखे होंगे हम लोग ने, कभी कोई मक्खी मर जाती है तो देखो मूंगी सब जमा हो जाती है, और वो एक जो मक्खी होती है उसको बहुत सारी मूंगी अपनी पीठ पर उठाकर लेकर जाती रहती है. अब देखा जाएगा तो मूंगी इतनी इतनी कमज़ोर होती है कि उसके सामने मक्खी भी जो होगी वो ज़्यादा भारी लगती है, लेकिन फिर भी वो मूंगियों का जो टीम वर्क होता है, साथ में मिलकर काम करना होता है, वो क्या करते हैं, वो उस मुश्किल वर्क को भी काम करते हैं. तो नेचर में जो कुछ भी चीज़ हमको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है. तो अगर हम लोग उस मूंगियों से टीम वर्क, साथ में मिलकर काम कैसे करना है. इंसान अकेला तो रहता नहीं है ना, इंसान अकेले कुछ कर सकता है. चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी हो, एक टीम की ज़रूरत होती है. अगर क्रिकेट खेलते हैं तो 11 लोग होते हैं टीम में, और हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है. एक अकेले इंसान से मैच जीती या हारी नहीं जा सकती. इसके लिए टीम वर्क होना भी हमारे लिए, अभी अगर हम टीम को लेकर चले, अगर हम सोचें कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएंगे, तो हमारा काम और जल्दी और आसानी और अच्छे से हो सकता है. ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड. Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oyster take in a grain of sand and they open up with a pearl. Innumerable stars shining across the infinite sky. Clouds take new shape with every passing moment. The winds make tree dance up the unhindered passion. Unhindered means without any disturbance. अभी हर चीज़, स्पाइडर का जो जाला होता है कितना डेलिकेट होता है, फूंक मारो तो भी टूट जाता है, लेकिन वो ही स्पाइडर के जाले में अगर वो कोई अपना शिकार फंसा लेता है तो उसी को उसी में बांध कर वो रखता है. रेनबो एक खुले आसमान में कलर्स फिल कर देता है. ऑयस्टर का एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ. एक छोटा सा उसके अंदर रेत का टुकड़ा भी चले जाए, वो सालों साल अपने आप को बंद रखता है, और जब खुलता है तो उसके अंदर मोती निकलता है. आसमान कितना फैला हुआ है और उसको चमकाने के लिए तारे हैं, दैट इज स्टार्स है. सो दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर, दैट हाउ वी आर सपोज टू लिव द लाइफ. वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी प्रिजर्वेंट. सो ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए, और ये हमको हमारा नेचर सिखाते रहता है. Water without a hint of ego change its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turning into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. बहुत सारी चीज़ है. पानी जो एक पत्थर को भी क्या कर देता है, उसके अंदर क्रैक ला सकता है. पानी इतना डेलिकेट होता है कि कहीं से भी उसको जगह मिल जाए वो अपनी जगह लेकर निकल जाता है. ये नहीं सोचता है कि मैं इतना बड़ा समंदर हूँ, मुझे जाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए. उसको एक छोटा सा किनारा भी मिल जाएगा तो वहाँ से वो बहकर निकल जाता है. तो इंसान को हमेशा एडजस्ट करना, और जिस भी जगह उसको रास्ता मिले वहीं से अपनी मंजिल को पा लेना, ये चीज़ें हम सीखते हैं. पिलर से बटरफ्लाई बनना, एक फ्लावर जो होता है उससे फ्रूट तैयार हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर नेचर को देखकर हम सीखने जाएंगे तो हम खुद में एक सोना, मतलब हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं. हम अपने आसपास का सारा माहौल भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द alchemy ऑफ नेचर, दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ नेचर. वी हैव टू लर्न टू अडेप्ट थिंग्स अराउंड अस the way nature adapts everything. I hope you all would have understood the lecture.